Welcome to the online class of social science once again. Today I am going to explain one of the most important chapter of geography, class 8th, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. As I promised you last time, on the request and demand of the students, I promised them that I will make my video bilingual. I hope that you will easily understand this video. आज इस वीडियो में मैं लैंड, भूमि, सोयल, मृदा, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जंतु के बारे में आपको जानकारी दूंगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एज यू कैन सी दैट ऑल दीज topics, these words, land, soil, water, natural vegetation and wildlife, all are natural resources. We have already discussed in chapter number 1. पिछले चैप्टर में जैसा मैंने बताया था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. So in this chapter we are going to discuss all of these land natural resources which are shown on the screen: land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Let's go ahead. Here you may see the content of the chapter which is given in the book. This video I have made as per the CBSE textbook and NCERT book of class 8th. Here these are the contents. First one is the land as a natural resource, causes of the uneven distribution of the population, land use, classification of land, conservation of land, soil and steps for the conservation of the soil, water as a natural resource, uses of water, causes of water pollution, conservation of water, rainwater harvesting system, natural vegetation and wildlife. I will explain all these 12 points one by one in detail. इन सभी points को मैं explain करूँगा एक एक करके. So first of all, try to understand this pie chart which you can see on the screen. One of the main natural resource, that is the land. On the screen if you see this pie chart, here you may see that this is our earth pie chart, and on the pie chart you can see that maximum part is water, and this remaining part which I can show you here, you may understand this part, it is land. Meanwhile this maximum part, 71% area of the earth, it is covered with water, whereas this land means it is 29% area. Meanwhile भूमि का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा पानी है, उसके ऊपर भरा हुआ है, और बाकी हिस्सा लैंड. So this is called lithosphere and hydrosphere. Lithosphere word is generally used for the land and hydrosphere is generally used for the water zone. Coming to the next slide, land area used. अब मैं आपको बताऊंगा कि लैंड एरिया यूज्ड किसे कहते हैं. लैंड एरिया यूज का मतलब होता है कि भूमि पर टोटल जो हमारी अर्थ के ऊपर लैंड है उसका कितना हिस्सा हम प्रयोग में लेते हैं. मीन्स हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग और द पॉपुलेशन. सो यू वुड बी सरप्राइज्ड दैट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को अगर लें तो उसमें से 90% पॉपुलेशन मीन्स दैट ऑक्यूपाइज ओनली 30% of the land area. Here you can see again, I can show you here that only 30% land, अगर हम अर्थ का ये अगर हम एक अर्थ माने तो इसका केवल 30% हिस्सा 30% इस पे वर्ल्ड
की पूरी पॉपुलेशन रहती है, मीन्स कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द लैंड, कंप्लीट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस दैट लिव्स ऑन दिस मच पार्ट ऑफ द लैंड। वेयर एज बाकी जो 70% हिस्सा रह गया, ये आई एम टॉकिंग अबाउट मीन्स दैट लिथोस्फीयर पोर्शन ओनली, केवल उसी पोर्शन की बात कर रहा हूँ जिस पर लैंड है, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी हाइड्रोस्फीयर जोन, पानी की जोन की बात नहीं कर रहा। मीन्स दैट रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। मीनवाइल या तो उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, कहीं कहीं जैसे पहाड़ी इलाके, पठारी इलाके, मरुस्थली इलाके, या फिर वह सारा इलाका मतलब सुनसान है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। दिस इज़ कॉल्ड लैंड यूज, इसको लैंड का यूज कहा जाता है। Here are some causes of the uneven distribution of the population of the world. First of all, you have to understand what is this uneven distribution of the population. Uneven distribution of the population का मतलब होता है कि जो संसार में जनसंख्या है वह सही एक समान पूरे संसार में मतलब क्यों नहीं बटी हुई है, वाई इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवन, असमान रूप से क्यों बटी हुई है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स गिवन हियर इन दिस स्लाइड। हियर यू मे सी दैट फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी, रग्ड टोपोग्राफी। अगर हम एक बार 3D मैप अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे अर्थ का जो मैक्सिमम सरफेस है वो एक जैसा नहीं है। दैट इज़ मीन्स इन सम एरियाज इट हैज़ माउंटेन्स, in some areas it has plateaus, some areas are filled with water, some areas are having deserts and all. Means this is totally uneven, means this topography is rugged topography, ऊपर का जो सरफेस है हमारे अर्थ सरफेस का, so that's why population is uneven. This is the one reason. Second is steep slopes of the mountains. हम देखें कि माउंटेन्स का जो हिस्सा है उस पे स्टीप स्लोप्स हैं, ऊपर से नीचे की ओर एकदम से चढ़ाई और नीचे स्लोप्स बने हुए हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू लिव इन दोज स्लोप्स इजीली, दैट्स वाई ऑल्सो पीपल डू नॉट लिव इन द माउंटेन रीजन्स, मीन्स लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। लो लेइंग एरियाज, लो लेइंग एरियाज़ का मतलब होता है ज़मीन के नीचे के कुछ हिस्से मतलब धरातल के बराबर ना होके नीचे के हिस्सों में झील, कुछ खाइयाँ, इस तरह की क्षेत्र, तो उन पे भी पॉपुलेशन इज़ बिट डिफ़िकल्ट इन दोज एरियाज़ टू। देन कम्स टू डेजर्ट रीजन। डेजर्ट हियर इट रेफर्स दैट मरुस्थली रीजन, जैसे हमारे भारत के अंदर थार रेगिस्तान है, थार डेजर्ट इज़ देयर इन इंडिया, वेयर एज इन African continent most of the area is having desert in the northern part, means that is in approximately 11 countries। हमारे देश के जो कुल क्षेत्रफल है उससे भी लगभग 3 गुना के आसपास, तो दैट इज़ डेजर्ट। तो डेजर्ट्स में जहाँ पानी की कमी होती है इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ भी लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस रेफर्स टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स, वो भी अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग है, जिसके कारण भी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं मिलती, एक समान नहीं मिलती। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज का जैसे मैंने बताया था कि जो भी कुछ हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है विच इज़ वैल्यूएबल एंड हैविंग यूटिलिटी फॉर द ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड रिसोर्स। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो एक समान पूरे विश्व भर में नहीं मिलता, दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा दैट इज़ रिलेटेड टू द लैंड यूज, ज़मीन का उपयोग। लैंड यूज़ कहते हैं ज़मीन का उपयोग। बहुत ही साधारण सी एक सिंपल सी भाषा है कि लैंड यूज़, कि हम ज़मीन का उपयोग किस प्रकार करते हैं, किस किस कारण उसका उपयोग किया जाता है। सो हियर आर सम पॉइंट्स। हियर फर्स्ट वन इज़ फॉर एग्रीकल्चर, कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए हम प्रयोग करते हैं। फॉरेस्ट्री, खेती के लिए, अपने वन उगाने के लिए, वनों के लिए, जंगलों के लिए। माइनिंग के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। माइनिंग का मतलब होता है खादानों की खुदाइयाँ।
बिल्डिंग हाउसेस, मकान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इवन फॉर इंडस्ट्रीज एंड वेयर आर वेरियस अदर पर्पजेज ऑल्सो, फॉर दैट वी यूज़ लैंड। ओके, अब आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, लैंड का वर्गीकरण, मतलब भूमि का वर्गीकरण, किस हिसाब से हम भूमि को बांटते हैं। तो वर्गीकरण हम दो करते हैं। नंबर 1 होती है प्राइवेट लैंड, आपकी अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड इज कम्युनिटी, एक समुदाय की प्रॉपर्टी। तो दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंड, प्राइवेट एज वेल एज कम्युनिटी लैंड। लेट्स सी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड में क्या क्या आता है। ओके, आई थिंक सो दैट you all can understand this topic that private means आपकी जो अपनी भूमि है, आपका अपना मकान, जिसे आप ये कह सकें कि ये मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे पिताजी द्वारा ली गई है या मेरे द्वारा ली गई है। दैट इज़ योर प्राइवेट, विच इन विच यू कैन लिव, यू कैन यूज़ दैट लैंड फॉर योर प्राइवेट पर्पज़। वेयर एज कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी एक होती है समुदाय की लैंड। जैसे मान लीजिए हम किसी पार्क में जाते हैं, तो पार्क में हम उस पार्क में खेलते हैं और लोग भी आते हैं, वहाँ पर रहते हैं, खेलते हैं स्टेडियम में। तो ये कम्युनिटी लैंड होती है जिस पर जन समुदाय का एक हिस्सा होता है, उस पर उसका अधिकार होता है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैरा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, उसकी सुरक्षा, सेफ्टी, सेविंग ऑफ लैंड। भूमि का कंजर्वेशन हम किस प्रकार करें, दिस इज़ द अनदर पॉइंट। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप कि हम भूमि का संरक्षण कैसे करें, भूमि को कैसे बचाएं। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार भूमि का बहुत ज़्यादा कटाव हो जाता है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। आपने सोइल इरोजन भी पहले पढ़ा होगा कक्षा 6-7 में, भूमि का कटाव, कि किस प्रकार भूमि जो डिप्लेशन ऑफ द लैंड होती है तो वो कई कारणों से होती है। सबसे पहला, अगर हम भूमि का बचाव करें तो उसके लिए पहला स्टेप एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का सीधा सा अर्थ होता है पेड़ लगाना, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना। दैट इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई, एंड एफोरेस्टेशन रेफर्स टू पेड़ लगाना। देन द सेकंड पॉइंट इज लैंड रेक्लेमेशन। रेक्लेमेशन का मतलब होता है भूमि को, मतलब नई भूमि तैयार करना। जैसे कुछ कई बार नालों के किनारे, नदियों के किनारे जब भूमि का कटाव हो जाता है ज़्यादा, तो उसमें हम उस ज़मीन को फिर दोबारा से उसमें मिट्टी डाल के उसको एक समतल एरिया बनाकर, या जो गहरी खाइयाँ होती हैं उनको जनरली कवर करके हम उस लैंड को अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के यूज़ में ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन। देन रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। कहने का मतलब ये है पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो उनका हम प्रयोग कम करें। अगर हम कम करेंगे तो वो ज़मीन के ऊपर कम गिरेंगे, कम गिरने से भूमि का कटाव कम होगा और उसकी उपजाऊ जो उर्वरक क्षमता है वह भी सही तरीके से प्रयोग में लाई जा सकेगी। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है, कई बार मैदानी हिस्सों में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेजिंग की जाती है, पशु चराई कराई जाती है कई पशुओं के द्वारा, तो वो पूरी तरह से लैंड बैरन लैंड हो जाती है, पूरी तरह से वो मतलब शुष्क भूमि हो जाती है, जिसके ऊपर से घास फूस खत्म हो जाता है। तो दैट हैज़ टू बी चेक्ड, उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सोइल। अब हम आ गए हैं दूसरी जो हमारे एक नेचुरल रिसोर्स था जिसको कहते हैं सोइल। सोइल मीन्स मृदा। जो आप जब अपनी ज़मीन को देखते हैं अर्थ की जिसके ऊपर आप खड़े हैं, तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे मिट्टी के दाने, मृदा जो यहाँ पे पड़ी हुई है। कई हिस्सों में ये अलग अलग कलर में पाई जाती है। हमारे जनरली हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में ब्राउन कलर में, थोड़ी सी ग्रीनिश कलर में, गेहूं के कलर में ये मिलती है। कुछ इलाकों में महाराष्ट्र व इन द अदर एरियाज़ इट इज़ ब्लैक ऑल्सो। उन इलाकों में क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग है, तो काली मिट्टी मिलती है। इन सम ईस्टर्न साइड एरियाज़ वहाँ लाल मिट्टी मिलती है, कहीं पे मरुस्थली भूमि है, कहीं पर पहाड़ी मिट्टी है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो क्या होती है मिट्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर डेफिनेशन इज गिवन ऑफ द सोइल that the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth।
जो अर्थ का जो ऊपर का जो एक लिथोस्फीयर जो प्लेट है हमारी, उस प्लेट में टेम्परेचर से, धूप से, बारिश से, हवा से धीरे धीरे जो हार्ड सरफेस था वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे सब्सटेंस मीन्स सैंड पार्टिकल्स में बट गया, जिसे कहते हैं सोयल। सोयल इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ये ऑर्गेनिक मैटर्स से बनी होती है जनरली। आपने देखा भी होगा कई बार ऑर्गेनिक मैटर्स जो छोटे छोटे मिनरल्स, इनमें मिनरल्स मिक्स होते हैं। वेदर्ड रॉक्स भी होती हैं इनमें। तो सोयल के फॉर्मेशन के लिए ये कुछ चीज़ें जिम्मेवार होती हैं। आप देखेंगे कि कई बार जब हमारे पेड़ों से पत्ते, लकड़ियाँ, कागज़ जब गिर जाते हैं तो एक समय के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू द सोयल। कई बार कुछ जीव जंतु, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कुछ चट्टानों को काट काट के उसको सोयल बना देते हैं। इवन जो प्लेट्यूज, जो हमारे अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो भी सोयल के अंदर मिक्स होते हैं। इट इज़ एंड वेदर्ड रॉक्स, जो रॉक्स, चट्टानें धीरे धीरे कटाव और टूट जाती हैं, सो दोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोयल फॉर्मेशन। नाउ दीज आर द फैक्टर्स फॉर द सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन को बनने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ घटक होते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं उनको, कि सोयल किस प्रकार बनती है, उसमें क्या क्या कारण जिम्मेवार होता है। सो फर्स्ट वन इज, दीज आर द 5 पॉइंट्स गिवन हियर। पहली होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब वह रॉक जिससे सोयल बनना स्टार्ट हुई है। एज यू ऑल आर अवेयर कि मैक्सिमम जो हमारी जो प्राइमरी रॉक है वो इग्नियस रॉक कही जाती है। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो पेरेंट रॉक जो लावा से बनी, जो एक फॉर्मेशन बनी, तो उसी से पेरेंट रॉक से, मतलब उसके टेक्सचर से, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, उनके मतलब पेरेंट रॉक से जनरली सोइल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन इज़ रिलीफ। रिलीफ हियर इट रेफर्स की एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स डिटरमाइंस द अकमलेशन ऑफ द सोइल, कि ऊंचाई नीचाई, जो एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से, वो भी एक सोइल फॉर्मेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। थर्ड वन इज़ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स एंड फोना कहते हैं एनिमल्स को। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सोइल फॉर्मेशन। कई बार उनके चलने से, उनके मतलब वेस्ट मटेरियल से, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। देन टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोइल फॉर्मेशन। इट्स थिकनेस, मतलब कितनी मोटी सोइल है, तो उसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों में 1-1 इंच सोइल बनती है। एंड द क्लाइमेट, क्लाइमेट रेफर्स टू टेम्परेचर, रेनफॉल, okay, rate of weathering and humus. All these things are the factors for the soil formation. Next slide is related to the degradation of soil. मतलब soil जो हमारी मृदा है उसका डिग्रेडेशन, उसमें धीरे धीरे किस प्रकार कमी आती जा रही है, किस प्रकार उसका इरोजन होता जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। मेन फैक्टर्स में हमने देखा जैसे सोयल इरोजन एक मेन फैक्टर होता है, डिप्लेशन, ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं में हम देखते हैं सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कहते हैं कि पेड़ों की कटाई, बिकॉज पेड़ों की जो जड़ें हैं उन्होंने सोयल को बांध के रखा है नीचे, मीन्स रूट्स ऑफ द सोयल, रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सोयल। तो अभी पेड़ हम काट रहे हैं, ज़्यादातर पेड़ों को काट काट के उनकी जगह पर मकान, उनकी जगह पर इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, तो उससे भी एक सोयल इरोजन हो रहा है। नंबर 2 इज़ ओवर ग्रीजिंग। मैंने बताया था ज़्यादा मात्रा में ग्रीजिंग करना, घास फूस को नष्ट कर देना, पशुओं को चराई, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनदर फैक्टर। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के गिरने से सोयल की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। रेन वॉश, कई बार हैवी रेनफॉल के कारण, फ्लड के कारण भी सोयल का कटाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के अंदर, जब वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स आती हैं अर्थ के अंदर, भूकंप के झटके आते हैं, तो पहाड़ के कई हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। वन अनदर फैक्टर इज फ्लड। फ्लड रेफर्स टू बाढ़। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के दिनों में सोयल जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है, जो ग्रीनी सब्सटेंस है, वो भी बह के दूसरी जगह पे चला जाता है। हेयर आर सम स्टेप्स फॉर द सोयल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, अब जैसे मैंने बताया था कि लैंड कंजर्वेशन का, इसी तरह एक सोयल कंजर्वेशन, सोयल को मतलब किस प्रकार बचाया जाए। तो सोयल कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स आप बहुत ध्यान से, आप जब देखेंगे, पिक्चर भी आपको दिखाई देंगी बुक्स के अंदर, NCERT की आप बुक्स जब देखेंगे तो पिक्चर भी आप देख पाएंगे। सी हियर, आई विल कवर दिस पॉइंट। मैंने पिक्चर इसमें ऐड नहीं की है किसी कारणवश, लेकिन आप
समझ सकते हैं इसको ध्यान से। पहला पॉइंट है मल्चिंग। तो आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें जब आप ये एनसीईआरटी जब ये स्लाइड पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मल्चिंग का मतलब होता है एक प्लांट का कवर, मतलब सोयल के ऊपर एक प्लांट का कवर बना देना। में जनरली क्या होता है कि जो बेयर ग्राउंड, जो एक सोयल है हमारी, जो ऊपर लेयर है, उसके ऊपर हम एक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स डाल देते हैं, कुछ घास फूस स्ट्रॉ आदि डाल देते हैं, जिससे उस सोयल का मॉइस्चर बना रहता है और वो कम मतलब डिप्लेशन होता है, उसका कटाव भी कम होता है। सेकंड इज़ कंटोर बैरियर्स जनरली स्टोन, ग्रास एक्सेट्रा लगाई जाती हैं। कंटोर बैरियर्स मतलब इसलिए लगाए जाते हैं खेत के, आपने देखा भी होगा जो खाली ज़मीन होती है उसमें चारों तरफ कई बार एक मतलब फेंसिंग लगा दी जाती है, कुछ स्टोन्स रख दिए जाते हैं, ग्रास रख दी जाती है, सोयल लगा दी जाती है। तो उससे क्या होता है, हवा जब तेज़ हवा चलती है तो उसमें एक जगह की मिट्टी, एक खेत की मिट्टी दूसरे में नहीं जाती और वो वहीं उन पे टकरा के रह जाती है। देन रॉक डैम्स का यहाँ here rock dams are piled up to slow down the flow of the water। रॉक डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि पत्थर के डैम बोले जाते हैं, पत्थर के छोटे छोटे बांध, कि जब पानी का तेज़ बहाव होता है तो उन जगह पर वो पत्थर लगा दिए जाते हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो और उनमें ज़्यादा गलीज ज़्यादा ना बने, उनमें ज़्यादा पानी का कटाव, पानी से मिट्टी का कटाव कम हो। देन इज़ द टेरेस फार्मिंग ये जनरली स्लोपी रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है कि व्हेन यू कैन से ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और द टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। वो इसलिए की जाती है टेरेस फार्मिंग के ऊपर, मीन्स कि पहाड़ों पे एकदम से स्लोप में आप खेती नहीं कर पाते तो उन पहाड़ों को स्टेप्स की तरह से काट लिया जाता है, एक छोटी छोटी सीढ़ीनुमा, ताकि उस सीढ़ीनुमा एरिया में आप अपनी खेती आसानी से कर सकें। देन नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कुछ इलाकों में जहाँ भूमि का कटाव ज़्यादा होता है, मृदा का कटाव ज़्यादा होता है, वहाँ पर आप एक से ज़्यादा फसलें उगा देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फसलें आप उगा देते हैं तो उससे भी सोइल का इरोजन कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब होता है कि पैरेलल, मतलब स्लोपी रीजन्स के अंदर आप सीधा स्लोप की दिशा में खेती जुताई ना करके और उसके ओपोजिट मतलब कॉन्टोर प्लोइंग कीजिए। ओपोजिट करने से क्या होता है कि मिट्टी या पानी एक जगह मतलब सीधा का सीधा नीचे नहीं आ पाता। शेल्टर बेल्ट्स का जब आप देखेंगे पिक्चर में भी कि खेत की चारों तरफ या ज़मीन के चारों तरफ में पेड़ों की एक लाइन लगा दी जाती है, कई पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा से मिट्टी का कटाव या पानी से मिट्टी का कटाव कम होता है। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो सेकंड हमारा थर्ड पार्ट है हमारा इसी चैप्टर का। यू कैन सी कि अर्थ के ऊपर वाटर, पानी का, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया था कि पानी हमारे मतलब अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इट इज़ द रीज़न दैट अर्थ इज़ कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। अंतरिक्ष से भी जब हम देखते हैं इसको तो ये एक नीला ग्रह दिखाई देता है पानी के कारण, क्योंकि 71% एरिया पानी से भरा हुआ है। तो पानी कहते हैं कि बिन पानी सब सून, पानी अगर नहीं है तो पानी के बगैर तो हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकते, है ना। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कई फिल्मों में कई गानों में इस तरह की बातें की जाती है। कारण ये है कि पानी हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। दैट्स वाई इट इज़ जनरली पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल अदर पीपल इन द सोसाइटी वो कहते रहते हैं पानी बचाओ, क्योंकि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वाटर यूज्ड बाय एन एवरेज अर्बन इंडियन, मतलब एक शहरों में एक व्यक्ति कितना पानी यूज़ कर लेता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में टोटल लिखा हुआ है, टोटल 150 लीटर, 150 लीटर तक पानी यूज़ किया जाता है। जनरली 3 लीटर ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग में 4 लीटर, बेदिंग मतलब अपने नहाने धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए 40 लीटर। 40 लीटर का यहाँ मतलब लगभग 2 बाल्टियों से है। वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए लगभग 1 बाल्टी, गार्डनिंग पौधों के लिए मतलब 23 लीटर्स और सो। तो 150 लीटर के आसपास पानी एक व्यक्ति को चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि घर में 1000 लीटर की टंकी हम रखते हैं
तो घर के सभी लोग उसको एक दिन में यूज़ कर लेते हैं। नाउ यूजेस ऑफ द वाटर, पानी का उपयोग, पानी का प्रयोग हम किस कारण से करते हैं, किस लिए पानी का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी बच्चे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, फिर भी मैंने इनको पॉइंट्स में डाला है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड दैट इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उनमें पानी का काम ज़्यादा होता है, कटाई के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। फिर कई जूट इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में पानी ही ज़्यादा यूज़ होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। फूड एंड कैश क्रॉप्स के लिए, खेती के लिए पानी का होता है। फैमिली यूज़ के लिए पानी होता है। मतलब आप अगर गिनने लग जाएंगे तो लगभग 100 के आसपास पानी की आप यूज़ बता सकते हैं कि पानी का यूज़ हम इसलिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने अपनी जब बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ड्रिपिंग टैप, जनरली क्या होता है घरों में भी कुछ टैप्स लीक होती हैं, कुछ नल का पानी लीकेज होता रहता है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक ड्रिपिंग टैप एक साल में कम से कम 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं भी अगर पानी लीकेज आपको लगे तो उसको तुरंत बंद करें एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, here आर कॉजेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, पानी में जो प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके क्या क्या कारण हैं, क्योंकि पानी भी प्रदूषित हो रहा है, आप देख रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा TDS आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है, नदियाँ नाले बहुत सारे गंदे हो गए हैं, इसलिए सरकार ने गंगा सफाई अभियान, यमुना नदी सफाई अभियान, इस तरह की बहुत सी नदियों को सफाई अभियान के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो क्या क्या कारण है एयर, फर्स्ट वन इज़ मिक्सिंग ऑफ द फैक्ट्री केमिकल्स इन द वाटर, फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलता है वो गंदा केमिकल सारा पानी में मिलता है। मिक्सिंग ऑफ द सीवेज वाटर, घरों का जो सीवरेज का जो पानी है, जो गंदा पानी है वो भी आजकल नदियों नालों में मिल रहा है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर खेती के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनसे भी पानी गंदा होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे उद्योग हैं उनके अंदर से जो वेस्ट निकलता है वो भी पानी के अंदर जाता है। पेस्टिसाइड्स, जो हम कीटनाशक जो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में जाके वो धीरे धीरे ज़मीन में पानी में आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ बारिश के दिनों में। वेस्ट ऑफ द होम, दैट इज़ ऑल्सो मिक्सिंग इन द वाटर, वो भी मतलब इसी कारण से पानी प्रदूषित हो रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पानी को हम शुद्ध रखें, क्योंकि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए हम क्या करें, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पानी को कंजर्व किया जा सकता है। सो हेयर आर सम स्टेप्स। नंबर 1 इज़ फॉरेस्ट कवर, कि आपको मतलब अफोरेस्टेशन करना चाहिए। फॉरेस्ट कवर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए अपने आसपास, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर पानी लाने में पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं, और जो स्लो ऑफ द सरफेस रन ऑफ है उसको वो रोक सकें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसमें जनरली आप रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना सकते हैं। अपने घर की छत पर पानी को इकट्ठा कीजिए और उसे पाइप के द्वारा एक टैंक में इकट्ठा कर लीजिए। उस टैंक के पानी को आप रीयूज़ करके आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और गार्डनिंग के लिए और घर के कामों के लिए उस पानी का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंकलर्स इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर फव्वारों का प्रयोग कीजिए। हालांकि आजकल बहुत से लोग करते हैं, फिर भी खड़ा पानी की अपेक्षा स्प्रिंकलर्स का यूज़ कीजिए। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि जहाँ पेड़ पौधे हैं सिर्फ वहीं पर पानी का प्रयोग करते रहना, धीरे धीरे वहाँ पर छोटे छोटे टैप्स लगा देना ताकि पानी वेस्ट ना हो, ज़्यादा मात्रा में पानी का वेस्ट ना किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है कि वी कलेक्ट दी वाटर ऑन द रूफ ऑफ द टॉप ऑफ द रूफ, अपनी छत के ऊपर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे टैंक्स में इकट्ठा करके एंड वी यूज़ दैट वाटर इन द फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़। आप इसका एक अच्छा सा वीडियो भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, मतलब जो प्रकृति से उगी हो, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो हमने नहीं उगाई, जो प्रकृति द्वारा अपने आप उग गई हो। जैसे आप देखते होंगे कि बाहर कई बार घास फूस पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, उनमें देयर इज़ नो नीड टू ग्रो दी ग्रास एंड एनी प्लांट, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जनरली फॉरेस्ट्स, जो हमारे जंगल होते हैं, थॉर्न एंड स्कर्ब्स एंड देन you can say grasslands, these are considered as the natural vegetations। तो यूजेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, हम किस लिए वेजिटेशन का यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बहुत आसानी से आप इस स्लाइड में समझ सकते हैं।
एक बार स्लाइड को देखने के बाद आपको शायद दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में हर पॉइंट को दिखाया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन का हम यूज़ करते हैं जनरली टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए, शेल्टर के लिए, अपने घर बनाने के लिए, मतलब लकड़ी का प्रयोग आप सिंपल और साधारण भाषा में अगर इसको समझें तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। प्रोटेक्ट्स सोयल को बचाने के लिए, एज आई टोल्ड यू कि नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं सोयल को बांधे रखते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर इवेपोरेशन जो वाटर साइकिल है दैट इन दैट साइकिल प्रोसेस इट हेल्प्स ए लॉट। फ्रूट्स, पेपर, it is the means it is used for so many things we get from the natural vegetation. Coming to wildlife होता है मतलब वन्य जीव जंतु। वन्य जीव जंतुओं में इनमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, मीन्स दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इनको वाइल्ड लाइफ का पार्ट मीन्स जैसे हम कह देते हैं कि हमने कहा कि फ्लोरा एंड फोना, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फोना है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द वाइल्ड लाइफ। तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु हमारे देश के अंदर बहुत सारे मिलते हैं। कई हिस्सों के अंदर आप जब देखेंगे, मतलब जैसे जिस प्रकार हमारा जो बर्ड्स एंड एनिमल्स जो आप अपनी दिनचर्या में रोज़ाना देखते हैं, पक्षी, बहुत सारे बिल्ली, कुत्ते, हिरन, शेर, जो ये सारे दीज ऑल आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु। हेयर दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। सो दैट इंटरडिपेंडेंस मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ दैट इंटरडिपेंडेंस, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, हम फिर से आगे पढ़ेंगे। तो यूजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ कई यूज़ हैं, हम दिन भर में मतलब आप देखेंगे गाय का दूध, भैंस का दूध, और भी कई जानवरों से दूध प्राप्त करते हैं, बकरी से। मीट, हाइड्स, स्किन बोलते हैं इसको जनरली, वूल, उनकी ऊन का हम कंबल बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं। हनी, डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, डीकम्पोजर्स होते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे कीट पतंगे और कई पशु, इनको मतलब जो डीकम्पोज कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाएं, बाय ईटिंग द इंसेक्ट्स, डेड एनिमल्स। मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो हमारा है उसको मेंटेन करते हैं। अब थ्रेट्स टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई जिस तरह से हो रही है। शहरों में आप देखेंगे कि बहुत कम पेड़ हो गए, चारों तरफ पोल्यूशन फैला हुआ है, पोल्यूशन का इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कतें होती है। सेकेंड वन इज सोयल इरोजन, सोयल भूमि का कटाव हो रहा है, उससे भी बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन को लाभ मतलब हानि हो रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आप देखेंगे कि आजकल इतनी ही बिल्डिंग ऊपर बनती है, इतनी नीचे बनती है, तो उससे भी इट इज़ ए ग्रेट लॉस। देन फॉरेस्ट फायर, आप देखेंगे कई बार कि संसार के कई हिस्सों में अलग अलग, अमेरिका में फॉरेस्ट फायर हो जाती है, हज़ारों एकड़ ज़मीनों के पेड़ जल जाते हैं। इधर अभी उत्तराखंड के अंदर ऐसा ही हुआ कई बार। ईस्टर्न पार्ट्स में भी पहाड़ी इलाकों में जंगलों में आग लग जाती है। आग जनरली तेज़ हवा से जब पेड़ों के तने टकराते हैं या भीषण गर्मी में ऐसा हो जाता है। सुनामी मीन्स टाइडल वेव्स, जो ह्यूज टाइडल वेव्स जो जैपनीज़ नेम है, तो कई बार उससे भी हमारी ज़मीन को काफ़ी खतरा, नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी खतरा, वो सारी बह जाती है, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। लैंडस्लाइड्स में भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन बहुत सारी नष्ट हो जाती है। एंड पोचिंग रेफर्स टू मीन्स हंटिंग, जो शिकार किया जाता है उससे भी। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाया कैसे जाए, हाउ टू कंजर्व इट, उसको कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि हमें सबसे पहले अवेयरनेस, लोगों को जागरूक किया जाए। बैन ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ट्रेड किया जाता है, जो लोग गलत तरीके से इनका व्यापार करते हैं, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। बैन हालांकि सरकार द्वारा लगाया हुआ है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना करें। बैन ऑन पोचिंग, हंटिंग, मतलब पशुओं को, जानवरों को ना मारें, उनका ना शिकार करें। प्रोजेक्ट टाइगर सरकार द्वारा हमारा चलाया गया है। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आप देखेंगे कि सरकार ने जैसे बैन लगा दिया तो उससे कंजर्वेशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है। पोचिंग पे बैन लगा दिया, अब हम जानवरों को कम मारते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत भारत के अंदर जो बाघ थे उनकी सुरक्षा की गई ताकि उनके नंबर बना रहे और हमारा एक फूड चेन मेंटेन रहे। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बहुत सारे देश के अंदर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायो रिजर्व्स बनाए गए, जिससे कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ थे, जो विलुप्त होने के कगार पे थे, उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको बचाया जा सके। तो इसीलिए एक कन्वेंशन
एक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, CITIES, सिटीज़, अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक कन्वेंशन का मतलब होता है एक सम्मेलन, मतलब एक पूरे सभी देशों के अंदर मिल के मतलब एक ये सम्मेलन किया गया। तो व्हाट वाज द पर्पज़ इसका कन्वेंशन, इसका पर्पज़ ये था कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए कई देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि ज़्यादातर जो देश हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को नहीं मारेंगे। रफली आप अगर कहें तो 5,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स उनको प्रोटेक्ट किया गया, जिनमें बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स, अलोइज, मीन्स ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी सुरक्षा का एक दूसरे को प्रॉमिस किया गया, एक दूसरे से भरोसा लिया गया कि आप मतलब इनका संरक्षण करेंगे जिससे हमारी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को मेंटेन किया जा सके। हेयर इज़ द टर्मिनोलॉजी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं मतलब इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, जैसे हम लोग निर्भर करते हैं पानी के ऊपर, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, दे आर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन अस फॉर द मतलब सर्वाइवल। तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, तो आई होप दैट एक बायोस्फीयर आपने लास्ट या आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो बायोस्फीयर होता है जैव मंडल वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लैंड, एयर, वाटर तीनों मिल जाएं तो वो दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वो जोन भी बायोस्फीयर कहा जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि आप सभी अपने इस स्लाइड में दिए गए सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखें। मेक योर गुड नोट्स, आप इनको याद कीजिए समय समय पे। जिस बच्चे को एक बार सुनने से समझ में नहीं आया, दे कैन लिसन इट 2-3 टाइम्स। आपको ज़रूर इस वीडियो से मदद मिलेगी। कीप वॉचिंग ऑल दीज videos for enriching your knowledge. Thank you very much. Thanks a lot. You were listening Arvind Bhardwaj. आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी।